Good morning, students. Today we will discuss about the effect of concentration on the vapor pressure. Factors ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ affecting the vapor pressure, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, volatile non volatile solutions ਦੇਖੇ. Now it is the effect of concentration on the vapor pressure of the components and the total vapor pressure of the solution, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ in terms of a very important law of this chapter, that is the Royle's law. ਇਹ Royle's law ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵੀ vapor pressure ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ with the concentration of the components in the solution, ਔਰ ਜਿਹੜੀ concentration term mainly ਅਸੀਂ use ਕਰਨੇ ਆ, that is the mole fraction. The mole fraction of the solute and solvent in the solution. और जैसे डिफाइन करिए कि रॉयल्स लॉ की डिफाइन कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, मैंने डिफाइन कर रहे हैं पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. तो मैं डिफाइन कर रहा है पी ए एंड पी ए नॉट, जिथे पी ए की है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ solvent in the solution. The solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ solvent present ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ vapor pressure exert ਕਰ ਰਿਹਾ, that will be the vapor pressure of the solvent in the solution. PA naught ਕੀ ਹੈ? It is the vapor pressure of pure solvent. It is the vapor pressure of the pure solvent ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ solvent present ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ maximum vapor pressure exert ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, that will be PA naught. It is the vapor pressure of the pure solvent. और XA की आ गया mole fraction of the solvent in the solution. तो ओवरऑल डेफिनेशन ये हुई है कि vapor pressure of a component in the solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. ये आ गया solvent का केस. इसी तरह ही ये solute का केस डिफाइन करिए, PB will be equal to, it will be equal to PB naught into XB. It is PB naught into XB. जिथे फिर PB की आ गया, it is the vapor pressure of the solute. It is the vapor pressure of the solute in the solution. इस solution च कितना solute present है और वो कितना vapor pressure exert करता है, that will be the vapor pressure of the solute in the solution. ਜਦੋਂ कि PB naught की है, it is the vapor pressure of pure solute. भी ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ solute present है वो कितना vapor pressure exert करता है, that will be equal to PB naught. और XB फिर की आ गया, it is the mole fraction of the solute in the solution. भी ओवरऑल ਅਸੀਂ ये डिफाइन कर देंगे भी vapor pressure of a component in the solution PI, it will be equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by the mole fraction of the component in the solution. P overall, this is the Royle's law. जैसी vapor pressure of the pure component एक constant value represent कर दिए तो overall PI की आ गया, it is directly proportional to XI. तो साड़ी definition की बन जाएगी कि vapor pressure of a component in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. भी जे ਅਸੀਂ vapor pressure of the pure components ਨੂੰ एक constant value consider कर लिए तो वो constant remove करके proportionality आ जाएगी, तो साढ़े को result की आ जाएगा भी vapor pressure of the component in the solution, it is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. That is Royle's law. The overall definition Royle's law ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ represent ਕਰਾਂਗੇ कि vapor pressure of a component in the solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution. That is Royle's law. ਇਹ ਜਨਰਲ Royle's law ਅਸੀਂ represent ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Royle's law explain ਕਰਨਾ ਵੀ volatile solutions as well as non volatile solutions. Royle's law for volatile solutions ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ explain ਕਰਾਂਗੇ, और Royle's law for non volatile solutions represent ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ explain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ Royle's law for volatile solutions. ਵੀ volatile solutions ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Royle's law किस तरह explain हो रहा है. याद करो volatile solutions ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ define ਕੀਤਾ ਸੀ, in which
both the components of the solution are volatile. दोनों के दोनों कंपोनेंट्स की है वॉलेटाइल है और दोनों के दोनों कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द टोटल वेपर प्रेशर. सल्यूट भी वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल वेपर प्रेशर वालों. और वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन की डिफाइन किया इट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूट इन द सोल्यूशन. क्योंकि दोनों के दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल है, वेपराइज करते पे है, दोनों वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते पे है, इस करके वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन के बराबर होएगा. इट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सल्यूट इन द सोल्यूशन. हुण इहदे ते रॉयल्स लॉ अप्लाई करिए जे असीं अप्लाइंग द रॉयल्स लॉ ताकि आ गया वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू पीए के बराबर है भी इट इज पीए नॉट इनटू एक्सए प्लस पीबी के बराबर है इट इज पीबी नॉट इनटू एक्सबी. से शो करता पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट इनटू एक्सबी. हुण देखो कंसनट्रेशन जी एक्सप्रैस होंदी है इट इज ऑलवेज एक्सप्रैस्ड इन टर्म्स ऑफ सल्यूट. सल्यूट की टर्म के एक्सप्रैस होंगी है कंसनट्रेशन, इस करके इस एक्सप्रैशन भी असी कि टर्म च लै जाना सल्यूट की टर्म च. याद करो तुसीं पढ़िया सी एक्स ए प्लस एक्स बी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इन अ सॉल्यूशन इज 1. तो इट इंप्लाइज एक्स ए के बराबर आ गया इट इज 1 माइनस एक्स बी. तो वैल्यू पुट करिए तो साढ़े कोल की आ गया पी सोल्यूशन विल बी इक्वल टू इट इज पी ए नॉट इंटू इतने मैं शो करता 1 माइनस एक्स बी प्लस की आ गया इट इज पी बी नॉट इंटू एक्स बी. जैसे एक्सपेंड करिए तो कि आ गया पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस इट इज पी बी नॉट इंटू एक्स बी. या फिर साढ़े को ओवरऑल की बन गया पी सोल्यूशन विल बी इक्वल टू इट इज पी ए नॉट तो एक्स बी कॉमन कट सकने प्लस शो कर रहा है मैं पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू की आ गया एक्स पी. साढ़े को ओवरऑल इक्वेशन ये बन गई थी the vapor pressure of the solution in terms of mole fraction of the solute is given in this way. The P solution is equal to PA naught plus PB naught, difference in the vapor pressures of the pure components into XP. ध्यान ना देखिए जैसी इस इक्वेशन तो देखो इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. याद करो किस तरह होता है when y is plotted versus x the curve will be a straight line जिहदा slope किहदे बराबर होंदा m दे और intercept किहदे बराबर होंदा c. तो सी शो कर दिता कि साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती पई है जिहड़ी सानू क्लीयरली की इंडिकेट करती पई है कि वेपर प्रेशर्स व्हेन दे विल बी प्लॉटेड वर्सेस मोल फ्रैक्शन द कर्व विल बी ए स्ट्रेट लाइन. तो असीं वो कर्व रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है. ये सिंपल असीं शो कीता भी वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के केस दे विच जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है किहदे बराबर होना सम ऑफ द वेपर प्रेशर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स. रॉयल्स लॉ अप्लाई किया और अल्टीमेटली इत्थे आ गया सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ते और रिजल्ट की शो कर दिता भी जो वेपर प्रेशर्स नू प्लॉट करने किहदे नाल विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन तो साडे कोल कर्व किस तरह दे आएंगे द कर्व विल बी ए स्ट्रेट लाइन जिन्हों मैं हुण ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा भी किस तरह असीं इहनूं रिलेट कर सकते. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा भी इट्स बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है. इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the Rayleigh law for volatile solutions. दोनों पैरेलल चलने भी वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट है. मैं दो वर्टिकल लाइंस जिस तरह नॉर्मली तुसी करो इस तरह शो कर दो एक पैरेलल इधरों इधर नूं चलेगा क्योंकि एक सल्यूट का हो गया एक सॉल्वेंट का हो गया. तो शो कर रहा है भी वेपर प्रेशर है हेयर इट इज वेपर प्रेशर और इधर की है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन में शो कर रहा है एक्स ए जे इत्थे शो करिए भी 0 तो इधर नूं इंक्रीज कर रही है एक्स ए इज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट राइट साइड नूं इंक्रीज कर रही है. जिथे एक्स ए 0 है तो डेफिनेटली एक्स बी कितना होएगा 1 और जिथे एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितना होएगा इट विल बी 0. तो असीं शो कर दिता भी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट राइट साइड नूं इंक्रीज कर रही है और सल्यूट लेफ्ट साइड नूं इंक्रीज कर रही है. हुण असीं कर्व्स रिप्रेजेंट करिए भी पहला कर्व वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए की आ
PA इज इक्वल टू PA नॉट इनटू XA ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्वेंट। ਹੁਣ डिफाइन करिए ਇੱਥੇ ਇਸ पॉइंट ਤੇ स्ट्रेट लाइन कर्व आना वैसे इस पॉइंट ਤੇ शो करी तो XA की वैल्यू कितनी है 0, वेपर प्रेशर भी की होएगा 0, बट जिवें जिवें XA की वैल्यू इंक्रीज करेगी वेपर प्रेशर भी की करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। साडे कोल कर्व किस तरह का आ रहा भी आ स्ट्रेट लाइन कर्व आया, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का की करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। The vapor pressure of the solvent is increasing with increase in the mole fraction of the solvent। और इत्थे आ गए आ वैल्यू मैं रिप्रेजेंट करा कि जे XA की वैल्यू 1 हो जाए, when XA is equal to 1 तो PA कितने बराबर हो जाएगा, it will be equal to PA naught which is the maximum value। तो ए मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी it is PA naught। एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा सी साडे को जिन्हों असीं शो कर दिता भी किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन, विद इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन की कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हुण ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूट रिप्रेजेंट करिए जे किस तरह का होए तो इत्थे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट रिप्रेजेंट करना तो किस तरह रिप्रेजेंट करांगे PB इज इक्वल टू PB नॉट इनटू XB। इत्थे XB की वैल्यू कितनी है 0 तो PB भी की हो जाएगा 0। हम जिवें जिवें XB की वैल्यू इंक्रीज करेगी, XB की वैल्यू की कर रही है इंक्रीज कर रही है, XB इज इक्वल टू जे 1 हो जाए तो PB कितने बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू PB नॉट। मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि पहला XB की वैल्यू इत्थे की है 0, PB कितना है 0, बट जिवें जिवें XB की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वेपर प्रेशर भी की कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा भी दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूट, आ रिप्रेजेंट कर देता भी दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूट। सारे को फिर स्ट्रेट लाइन आ रही है और आ रिप्रेजेंटेशन देती है और एक ही आ गया दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट आ गया PB नॉट, PA नॉट PB नॉट एक ही हो गया। दिस इज एक के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट हो रहा है PB इज इक्वल टू PB नॉट XB और एक के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट हो रहा है PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूट, स्ट्रेट लाइन कर्व्स आ रहे हैं। हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जे रिप्रेजेंट करिए भी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करिए तो किस तरह का आएगा भी इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं असीं आपस दे विच मिला देना, दोनों पॉइंट्स नूं असीं एक होर स्ट्रेट लाइन असीं रिप्रेजेंट कर दित्ती भी ये दोनों कर्व्स नूं आपस दे विच मिलाता दोनों पॉइंट्स नूं तो एक ही आ गया दिस इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू इट इज PA प्लस PB। This is the graphical representation of the Royle's law, a very important representation। the ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ plots ਕਰਦੇ ਪਏ when the vapor pressures they are plotted versus mole fraction ਤਾਂ curve ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ straight lines ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਵੀ this is vapor pressure curve of the solvent represent ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ भी जिवें जिवें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट भी की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है और जो मैक्सिमम वैल्यू XA 1 आ गई तो PA कितने बराबर हो गया PA नॉट। इसी तरह ही वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूट इस साइड में जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन आ रही है दो कर्व्स चलते पे पैरेलल भी इत्थे XB की वैल्यू कितनी सी 0, जिवें जिवें XB की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वेपर प्रेशर की कर रहा है इंक्रीज और इत्थे की आ गई मैक्सिमम दैट इज PB नॉट। तो यह दोनों कर्व्स नूं असीं यह दोनों पॉइंट्स नूं मिलाता तो की आ गया वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूशन। But this is the graphical representation of the Royle's law for the volatile solutions। Now हम असी second represent करना the Royle's law for the non-volatile solutions। Royle's law for non-volatile solutions किस तरह explain करांगे की features आएंगे वो असी represent करने अभी again very important। It is Royle's law for non-volatile solutions। देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਭਲਾ in which one component of the solution is non volatile और मेनली वो कंपोनेंट ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ the solute when a non volatile solute is dissolved in a volatile solvent। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਨ ਅ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਫॉर प्रिपेयरिंग the non volatile solutions। non volatile solutions ਕਿਹੜੇ ਆ
in which a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent. एक volatile solvent ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ dissolve ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ PA plus PB। ਬਟ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ it will not contribute towards the total vapor pressure. Vapor pressure of the solute approximately कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ਅਸੀਂ शो करांगे कि as the solute is non volatile ताकि रिप्रेजेंटेशन दे देंगे PV will be approximately equal to क्या आ जाएगा, 0। तब P solution के बराबर आ गया, it will be equal to PA। P solution will be equal to की आ गया, PA। मतलब vapor pressure of the solution will be due to the solvent present in the solution। Vapor pressure of the solution will be due to the solvent present in the solution। solute का vapor pressure ते की हो गया approximately 0, क्योंकि solute non volatile है, vaporize ही नहीं करता पिया, pressure exert ही नहीं कर रहा, इस करके उसका vapor pressure असी कितना ले लिया, 0। तो vapor pressure of such solution will be due to the solvent present in the solution। मैं तो रॉयल्स ला अप्लाई करिए तो PA कितने बराबर है, इट इज PA नॉट इनटू XA। ਹੁਣ फिर कंसनट्रेशन जी है कि टर्म च एक्सप्लेन होंगी है सल्यूट की टर्म च, तो इनू भी एक्सप्रैस करांगे इन टर्म्स ऑफ सल्यूट। तो P सोल्यूशन विल बी इक्वल टू इट इज PA नॉट XA की जगह पे मैं लिख देता फिर P1 माइनस XB, क्योंकि XA प्लस XB के बराबर होंगे, इट इज इक्वल टू 1। तो साढ़े कोल की आ गया, XA की जगह पे 1 माइनस XB रिप्रेजेंट कर देता। तो एक्सपैंड करिए इनू, P सोल्यूशन विल बी इक्वल टू PA नॉट माइनस इट इज PA नॉट इनटू XB। नाउ रीअरेंज करो, PA नॉट माइनस XB इधर लैंदा, प्लस हो गया PA नॉट इनटू XB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस P सोल्यूशन। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, PA नॉट माइनस P सोल्यूशन। PA नॉट की है the vapor pressure of the pure solvent maximum value, और P solution की है जो उस pure solvent ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ non volatile solute ऐड किया, जो उस pure solvent ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ non volatile solute ऐड किया ਤਾਂ कितना vapor pressure solution ਦਾ है। और याद करो ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ डिफाइन किया ਸੀ कि जो किसी non volatile solute ਨੂੰ volatile solvent ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करने हैं तो vapor pressure of the solution की करता, डिक्रीज करता। वेपर प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन की करता सी, डिक्रीज करता सी। ये आ गया वेपर प्रैशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और वेपर प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन मींस डिक्रीज्ड वैल्यू। वेपर प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन की है डिक्रीज्ड वैल्यू, तो फिर यह जो डिफरेंस आया इन्हों मैं कह सकना इट इज डिक्रीज इन दी वेपर प्रैशर। सपोज कर लिया मैं कि वेपर प्रैशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट कितना सी 80, जो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया तो वेपर प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज होकर कितना आ गया 50। तो यह जो डिफरेंस है 80 माइनस 30, यो वैल्यू आई ना 30 की है कि जो असी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया टू ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट तो वेपर प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन कितना डिक्रीज किया 30 यूनिट। तो यह जी टर्म आई PA नॉट माइनस P सोल्यूशन, इन्हों मैं कह सकना इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। It will be said as lowering in vapor pressure, decrease in the vapor pressure। कि जो एक non volatile solute ऐड किया to a volatile solvent तो vapor pressure of the solution कितना decrease होया, that will be equal to this difference। इस समय relate किया कि जे vapor pressure of the pure solvent expose कर लिए भी 80 यूनिट है, जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो सोल्यूशन का वेपर प्रैशर कितना हो गया, डिक्रीज हो गया 50 यूनिट। डिफरेंस कितना 30 की है, डिक्रीज इन दी वेपर प्रैशर। तो इस करके वैल्यू में की कहेंगे लोअरिंग और डिक्रीज इन दी वेपर प्रैशर। ठीक है, वेपर प्रैशर टर्म्स अलग करिए ताकि आ गया PA नॉट माइनस P सोल्यूशन डिवाइडेड बाई PA नॉट, इट विल बी इक्वल टू XB, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जी मेन डेफिनेशन बन गई। ऊपर जो आ रहा है PA नॉट माइनस P सोल्यूशन की सी लोअरिंग इन वेपर प्रैशर,
lowering in vapor pressure as compared to the vapor pressure of the pure solvent maximum value fraction होगी, ठीक है. Lowering in vapor pressure as compared to the vapor pressure of the pure solvent maximum value, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ relative lowering in vapor pressure. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, it will be said as a relative lowering in vapor pressure. मतलब decrease in the vapor pressure of the solution as compared to the vapor pressure of the pure solvent, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, that will be said as the relative lowering in vapor pressure. ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, that will be the mole fraction of the solute in the solution. ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰॉयल्स ਲਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਰॉयल्स ਲਾ ਫਾਰ ਦੀ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਵੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾ, when a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, the relative lowering in the vapor pressure of the solution, the relative lowering in the vapor pressure of the solution will be equal to the mole fraction of the solute in the solution. The relative lowering in vapor pressure of the solution will be equal to the mole fraction of the solute in the solution. क्योंकि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ नॉन वोलेटाइल solute ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ टू ए वोलेटाइल solvent, वेपर प्रेशर डिक्रीज करदा, उस डिक्रीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, that is lowering in vapor pressure, and that lowering in vapor pressure as compared to the vapor pressure of the pure solvent, that is said as a relative lowering. और वो relative lowering किहदे बराबर आ रही है, that is the mole fraction of the solute in the solution. और ਇਹੋ ਹੀ रॉयल्स ला आ for the non volatile solutions. When a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, the relative lowering in vapor pressure of the solution is equal to the mole fraction of the solute, mole fraction of the solute in the solution. ACB रॉयल्स ला की है very important law in this chapter. General रॉयल्स ला define कर देता पहला कि vapor pressure of a component in the solution is equal to the mole fraction of the vapor pressure of a component in the solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. The दोनों cases ले volatile as well as non-volatile solution. Volatile ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ graphical representation show ਕੀਤੀ पूरी properly straight lines आ रही हैं, वो explain ਕੀਤਾ और इत्थे relative ये topics. Thank you.